Hi everybody, this is Dr. Priyanka Sharma. So welcome to your weekly higher education update class. So मैं comments पढ़ रही थी last to last week में जब हमने क्लास की तो स्टूडेंट्स ने बोला मैम हायर एजुकेशन के साथ साथ आप कॉम्प्रीहेंशन की भी प्रैक्टिस करवाओ। तो आज की क्लास में हम वही करने वाले हैं, 2 पैसेजेस करेंगे जिससे कि आपकी पैसेज प्रैक्टिस भी हो रही है एजुकेशन की, एट द सेम टाइम आपका जो हायर एजुकेशन का कॉन्टेम्प्ररी सिस्टम एज वेल एज यानी कि मॉडर्न हायर एजुकेशन जो चल रही है, एंड एक पैसेज हम करेंगे एंशियंट हायर एजुकेशन इन इंडिया का। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। पैसेज पढ़ते हैं, पैसेज नंबर 1 कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। तो आई विल रीड इट फॉर यू। ओके एवरीबॉडी, so India's higher education system is one of the largest in the world, marked by rapid expansion, growing diversity, and transformational reforms. Over the past 2 decades, universities and colleges have multiplied, opening doors for millions of young learners. The National Education Policy 2020 has emerged as a major turning point, aiming to create a more flexible, multidisciplinary, and student centric ecosystem. It emphasizes holistic learning, research, innovation, global competitiveness, while promoting equitable access for students from all religions. दूसरा पैराग्राफ बोल रहा है, a key feature of recent reforms is the shift towards a 4-year undergraduate program with multiple entry exit options, enabling learners to tailor their educational journey according to their aspirations. The introduction of academic credit banks, biannual admission, and renewed focus on skill-based courses reflect the push towards greater flexibility and employability. The passage continues. Research is also receiving significant attention through initiatives such as National Research Foundation and One Nation One Subscription, which provide wider access to global journals. तो ये NEP 2020 के बारे में बात कर रहा है, NRF जिसमें 50,000 करोड़ बजट है, और वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन जिसके ऊपर एक मैं सेशन कर चुकी हूँ कि अब क्या होगा, जो वर्ल्ड के बेस्ट जर्नल्स हैं, रिसर्च जर्नल्स, नेशनल लेवल के ऊपर उनका सब्सक्रिप्शन लिया जाएगा और यूनिवर्सिटी, सेंट्रल, स्टेट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में सीक्वेंस वाइज सभी बच्चे उसका एक्सेस ले पाएंगे. Despite these positive strides, challenges remain. Many institutions face issues related to quality, outdated curricula, faculty shortage, and uneven infrastructure. तो हमारे challenges क्या हैं? Quality, outdated curricula, faculty shortage और साथ में infrastructure अपने पास proper ज़्यादा नहीं है. Bridging the gap between elite institutions and state university continues to be a priority. At the same time, digital transformation, AI integration, and increasing foreign university collaborations are opening new avenues for growth. Overall, Indian higher education stands at a critical juncture, balancing scale with quality and tradition with innovation, moving steadily towards building a globally competitive, inclusive, and future-ready academic landscape. तो ये जो पैसेज है, इसके क्वेश्चंस आपको करवाती हूँ, इसके आंसर्स मैं आपको बता दूंगी, लेकिन जो नेक्स्ट पैसेज होगा जो मैं करवाऊंगी ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम, उसके आंसर्स मैं आपको नहीं दूंगी, वो आपको मुझे कमेंट्स में बताने पड़ेंगे. ठीक है, ये वाला मैं प्रैक्टिस करवा देती हूँ. तो अब ये बहुत सिंपल है. NEP 2020 एम्स टू मेक इंडियन हायर एजुकेशन व्हाट? सिंपल. हम लोग रिजिड और सेंट्रलाइज नहीं, डिसेंट्रलाइज की बात कर रहे हैं. ये तो आपकी बेसिक नॉलेज है, इसमें पैसेज ना भी पढ़ो तो आपको आना चाहिए. फ्लेक्सिबल और स्टूडेंट सेंट्रिक, हाँ जी, बिल्कुल नहीं. टीचर डोमिनेटेड और एग्जाम ओरिएंटेड, टिपिकली नहीं. तो आंसर यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी. सिंपल ना? और ये पता है क्यों सिंपल है? क्योंकि आपने NEP पढ़ा हुआ है. Which feature is associated with the 4-year undergraduate program? सिर्फ वन टाइम एग्जिट ऑप्शन नहीं, करिकुलम के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, इसी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए तो इसको किया गया है मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम, जिसके अंदर आप 1 ईयर में सर्टिफिकेट लेते हो, सेकेंड ईयर के अंदर आपको डिप्लोमा मिलता है, और जब आप कंप्लीट करते हो तो आपको सर्टिफिकेट मिलता है. राइट? तो और साथ में मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम 1 ईयर कर लिया, अगर आपको
ब्रेक लेना पड़ता है, तो नेक्स्ट टाइम आप 1 ईयर से नहीं शुरू करोगे, सेकेंड ईयर से शुरू करोगे। तो मल्टीपल एंट्री एग्जिट ऑप्शन। तीसरा है एकेडमिक बैंक क्रेडिट, किस लिए जो है वो डिजाइन किए गए हैं? टू प्रमोट टीचर ट्रेनिंग? नहीं जी, क्रेडिट बैंक होता क्या है कि आपने जितना भी टाइम स्पेंड किया है, जितने एग्जाम्स असाइनमेंट्स दी हैं, वो सारे के सारे काउंट होते हैं और आपका एक प्रॉपर अकाउंट बनता है जिसके अंदर आपके एबीसी होते हैं, ठीक है। क्रेडिट मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, बिल्कुल सही। अगर आप एक इंस्टीट्यूशन या एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाते हैं तो आपके जो क्रेडिट्स हैं वो स्टोर्ड होते हैं आपके अकाउंट में, और नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन में अगर आप जाते हो, नेक्स्ट डिपार्टमेंट में जाते हो, तो आपके पुराने वाले वेस्ट नहीं होते, वो काउंट होते हैं। तो यूनिफॉर्म सिलेबस नहीं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज नहीं, एकेडमिक क्रेडिट बैंक यानी एकेडमिक बैंक क्रेडिट आप बोल सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी के अंदर हमको हेल्प करता है। अब वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन क्या है? जैसे आपको बोला कि गवर्नमेंट जो है वो कह रही है कि हम ऑलमोस्ट सभी अच्छे रिसर्च जर्नल्स का एक्सेस लेंगे, एंड पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, फिर स्टेट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को एक्सेस मिलेगा। तो ये स्टूडेंट स्कॉलरशिप के लिए नहीं है, फैकल्टी रिक्रूटमेंट के लिए नहीं है, ये है कि हम ग्लोबल बेस्ट रिसर्च जर्नल्स जो हैं, लेटेस्ट रिसर्चेस हम हर बच्चे तक पहुंचा पाए। नेशनल स्पोर्ट्स प्रोग्राम तो ये है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, Which of the following is a major challenge in Indian higher education? Indian higher education में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? बहुत ज्यादा नंबर ऑफ रिसर्च स्कॉलर्स नहीं, हमको तो ये चाहिए, कम है। एडिक्वेट फैकल्टी अवेलेबिलिटी, तो ये चैलेंज का है इसमें, मतलब अगर अपने पास अच्छे टीचर्स ऑलरेडी हैं, जो कि नहीं है, ठीक है, तो ये चैलेंज तो नहीं है, क्योंकि ये कह रहा है आउटडेटेड करिकुलर क्वालिटी इशू, ये आपके पैराग्राफ के अंदर मेंशन्ड है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तो अपने को क्या करना है, लाना है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ आउटडेटेड करिकुलर और क्वालिटी इश्यूज। मैंने यहाँ पे ये देखो लिखा हुआ है, चैलेंजेस रिमेन, मेनी इंस्टीट्यूशन फेस चैलेंज रिलेटेड टू क्वालिटी एंड आउटडेटेड करिकुलर एंड फैकल्टी शॉर्टेज, और वहां पे लिखा हुआ है कि फैकल्टी बहुत है अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, एनईपी 2020 encourages a shift towards single discipline, नहीं, मल्टी डिसिप्लिनरी है, ये आप भी जानते हो, बहुत सिंपल है। और होलिस्टिक लर्निंग, सिर्फ और सिर्फ वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्लोज बुक असेसमेंट्स नहीं, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटी कोलैबोरेशन जो है, जैसे हम बोलते हैं कि 100 फॉरेन की यूनिवर्सिटीज के कैंपसेस बनेंगे इंडिया के अंदर, तो कोलैबोरेशन क्यों हो रहा है? ताकि हम एजुकेशन का एक्सेस रिड्यूस करें, शिक्षा तक पहुंचने को कम करें हर बच्चे का, नहीं। स्टूडेंट्स की मोबिलिटी, यानी अपने स्टूडेंट्स जो है वो बाहर ना जाएं, देश में ही रहें, ऐसा तो नहीं है। ओपन न्यू एवेन्यूज फॉर ग्रोथ, मतलब डेवलपमेंट के हम नए नए एवेन्यूज खोल पाएं, ग्लोबली हम पढ़ पाएं, ग्लोबल कैंपसेस जब हमारे देश के अंदर होंगे, हम कोलैबोरेट करके अच्छा पढ़ पाएंगे। और ये हॉल्ट इंटरनेशनल एक्सपोजर, मतलब अपने स्टूडेंट्स को बाहर हम ना जाने दें, है ना, उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए, ऐसा नहीं है। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। अब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड एआई इंटीग्रेशन आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू अ सिस्टम दैट इज मोर मैनुअल एंड पेपर बेस्ड, नहीं भाई, अगर डिजिटल कर रहे हैं तो हाथ से क्यों करेंगे। फ्यूचर रेड, मतलब फ्यूचर रेडी होना चाहिए यहाँ पे, है ना, फ्यूचर रेडी। आइसोलेटेड ग्लोबल ट्रेंड्स, नहीं, मतलब ग्लोबल में जो चल रहा है उससे अलग थलग हो जाओ, अगर अलग थलग हो जाएंगे तो फिर कैसे चलेगा काम, है ना, मिलके करना है। एग्जामिनेशन पे भी नहीं, हैवी नहीं होना है। तो फ्यूचर रेडी, मतलब हम फ्यूचर के लिए रेडी रहे, आने वाले टाइम के अंदर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होने वाला है, सो लाइक दैट। तो ये है आपका पैसेज नंबर 1, मैंने करवा दिया, सिंपल है, पैसेज भी सिंपल था और आपकी जनरल और बेसिक नॉलेज भी थी। जो नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन है, इसका आप मुझे, मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी, लेकिन इसके आंसर मुझे आप बताओगे, ठीक है, इसके आंसर मैं नहीं करवाने वाली हूँ। आई विल टेल यू द 8 क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चंस दैट आई हैव, और आप उनके 1 2 3 4 5 6 7 करके आप मुझे उनका कमेंट बॉक्स में प्रॉपर बताओगे, और फिर मैं अपना कमेंट, सबके जब आंसर्स आ जाएंगे फिर मैं अपना कमेंट पिन करूंगी, जिसके अंदर एग्जैक्ट आंसर्स क्या है वो मैं लिखूंगी। ओके, आई होप यू आर गोइंग टू एंजॉय इट। ऑलराइट, now we come to the ancient Indian education. Okay, chalo. Ancient Indian education during Buddhist period represented a profound intellectual transformation that reshaped the subcontinent's knowledge tradition. Buddhist education cultivated a rational, dialogic and inquiry oriented learning culture.
Monastic institution जैसे विहारास gradually evolved into fully organized universities, जिसमें से the most renowned being Nalanda, Takshila, Vikramashila, Odantapuri and Jagadala. These centers functioned as vibrant academic cities, housing thousands of students and teachers, extensive libraries, observatories, and translation bureaus. The curriculum reflected remarkable breadth, while Buddhist philosophy and Abhidhamma formed the intellectual core. Abhidhamma क्या होता है? Abhidhamma is the philosophy, ideology of Buddhism. Students also studied Nyaya logic, Ayurveda, grammar, poetics, metallurgy, astronomy, political theory जिसको अर्थशास्त्र बोलते हैं, and international diplomacy. Nalanda's library, the Dharma Ganja, famously held texts on Hindu, Jain, and even Greek sciences, demonstrating intellectual openness long before modern interdisciplinarity. The curriculum reflected remarkable breadth, while Buddhist philosophy and Abhidhamma formed the intellectual core. Students also studied Nyaya logic. ठीक है, I think ये थोड़ा repetitive हो गया है. Last paragraph ये है. A key pedagogical hallmark was debate culture. The techniques of Vada, Jalpa, and Vedanta sharpened reasoning, enabling scholars to engage in rigorous public disputations that determined academic prestige. ठीक है? Teachers like bhikkhus and acharyas emphasized ethical self-discipline. Learning was inseparable from moral cultivation through adherence to the Vinaya, meditation and communal living. कैसा लगा पैराग्राफ? तो मेरा प्रेडिक्शन ये भी है कि एंशिएंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम के ऊपर पिछले 2 साल से मैं प्रेडिक्शन कर रही हूँ कि आएंगे क्वेश्चंस, दिसंबर में भी आएंगे. उसका रीजन ये है कि एनईपी 2020 ने इसके ऊपर फोकस किया है. इन यूनिवर्सिटीज का जिक्र हमारी पॉलिसी में हुआ है. अब मैं आपको दिखाऊंगी क्वेश्चंस और उसके आंसर्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में, ऐसे नहीं कि एक कमेंट में एक लिख रहे हो, नहीं, चैट बॉक्स नहीं बोल रही हूँ मैं, कमेंट बॉक्स लिख रही हूँ. ठीक है, आप ऐसे बनाओगे, ऐसे करके एक ही कमेंट के अंदर, और आप मुझे इसके साथ साथ में आंसर लिख के बताओगे. ये आपका होमवर्क है, नहीं करोगे तो फिर गलत बात. ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन है, बुद्धिस्ट एजुकेशन डिफर्ड फ्रॉम द अर्लियर वैदिक मॉडल primarily because it emphasized ritual memorization, rational inquiry dialogue, warrior training या फिर commercial activities. Answer in comment. Answer in comments. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. और आपको इसका जो पीडीएफ है वो हमारे ऐप पे मिल जाएगा. ऐप पे भी मिल जाएगा, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएगा. सेकंड क्वेश्चन है, which language shift increased accessibility to education during the Buddhist period? Sanskrit to Persian, Pali and Prakrit instead of Sanskrit, Tamil to Sanskrit, Prakrit to Greek. Okay. Third question है, the central ethical code governing monastic discipline in Buddhist education was what? Dharmashastra, Manusmriti, Vinaya या फिर महाभारत. Homework. Fourth question, which of the following was not typically studied in Buddhist universities? Abhidhamma, न्याय, astronomy या फिर mechanical engineering. ठीक है, modern sense नहीं, science. Next question. Nalanda's Dharma Ganja library is specifically noted for exclusively housing Buddhist scriptures, containing texts from diverse traditions including Greek sciences, teaching only local languages या फिर restricting access to foreign scholars. Homework है, करके बताइए इसका आंसर क्या होगा. Next is question number 6. The debate techniques Vad, Jalpa and Vedanta were primarily used for, pardon my pronunciation, it's not that great, training soldiers, strengthening ritual chanting, structuring philosophical disputations या फिर memorizing monastic rules. Question number 6, homework everybody. इसमें सभी बच्चे participate कर सकते हैं, paper 1, paper 2 का. Question number 7 says, which characteristic best illustrates the interdisciplinary nature of Buddhist universities? Its exclusive focus on meditation,
inclusion of subjects like statecraft, poetics, and metallurgy, only teaching Buddhist canonical texts, prohibition of foreign students. Okay, and one last question करेंगे, इसका आंसर आप बताएंगे मेरे को. One of the reasons Buddhist universities became intellectual crossroads of Asia was their location near port cities, their role in hosting translation bureaus and foreign scholars, their military alliances या फिर their admission restrictions. Okay, so आप इसको रिवाइंड करके दोबारा पैसेज देख सकते हो एंड एंश्योर दैट यू आंसर, बिकॉज ये जो मैंने एक्सरसाइज करवाई है ये डबल चीजें हैं. एक तो आपका मॉडर्न और एनईपी थोड़ा रिवाइज हो जाए मॉडर्न इंडियन एजुकेशन के बारे में, और एंशियंट इंडियन को हमने कंबाइन किया है. एक पैसेज के आंसर्स मैंने आपको बता दिए हैं. दूसरा अब आपको करना है एंश्योर कि अगर मैं आपकी डिमांड्स को पूरा कर रही हूं तो आप भी अच्छे से अपना होमवर्क करो. Tell me the answers to all these 8 questions in one chat. All right. So चलो, take care of yourself. कल दोपहर मिलते हैं 1 बजे पेड कोर्स क्लास के अंदर, और आपको पता है यूनिट 2 का आपका टेस्ट है. सो बी ऑन टाइम एट 1 PM. जो यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स हैं आपको हम 5 बजे मिलेंगे कल लाइव, और साथ में हम करेंगे क्लास 2 या फिर पार्ट 2 ऑफ 2014 to 2025 के क्वेश्चंस. All right. So see you all tomorrow at 1 PM and 5 PM. Take care. Bye.